Namaste. Welcome to ET Leadership Excellence Awards North 2025, a platform that is shaping the future. So ladies and gentlemen, today I have someone really special with me, a visionary leader that is shaping the field of education and also bringing a great revolution. Let's welcome Mr. Raja Raman Khanna, Chairperson, St. Teresa School. Welcome, sir. It's an honor for us that you are here with us today. Thank you, ma'am. So, sir, as the field of education is evolving, what role does emotional intelligence play in the Vision 360 model of education? All-round development of the children is very important. It is very important that there should be academic excellence amongst the students, and we should make a character building of the students. Besides that, there should be spiritual elevation of the students should be there. There should be concern for the environment and the society also. But for all-round development, 360-degree development, emotional इंटेलिजेंस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आज गणेश चतुर्थी है। सबसे पहले तो मैं आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। और आज ही मैं पढ़ रहा था हाँ जी, कि गणेश जी से पूछा गया एक बार कुछ देवताओं ने कि आप लड्डू क्यों बहुत ज़्यादा खाते हो। तो उन्होंने कहा कि लड्डू मैं इसलिए खाता हूँ कि जब तक आपके अंदर ज्ञान ऑलराउंड नहीं होगा तब तक आप ज्ञानी नहीं बन सकते। इसी प्रकार से लाइफ के अंदर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो सारी पढ़ाई बेकार है। बिल्कुल सर। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले बन गए, आपने बड़ी बड़ी डिग्रीज ले ली, बट डिग्रीज लेने के बाद आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, देयर इज नो सिंपैथी एंड एम्पैथी फॉर द पीपल, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस and emotions of the others, then the whole process what you have done in your life is of no use. आपको पढ़ाई एक अच्छा विजनरी बना सकती है, एक अच्छा एजुकेशनिस्ट बना सकती है, एक अच्छा एजुकेटेड आदमी बना सकती है, बट अगर ह्यूमन बनना है तो वी हैव टू बी इमोशनल, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस, दैट व्हाई वी आर बिहेविंग इन ए सर्टेन पर्टिकुलर मैनर। और सबसे पहले तो इमोशंस के अंदर हमें ये देखना है कि हमारी इमोशंस के अंदर ऑलवेज शुड बी ए लव फॉर द अदर्स। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं जागता दूसरों के लिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे हमारा देश है, चाहे हमारी नदियाँ हैं, चाहे हमारे नाले हैं, चाहे कुछ भी है, तो देयर शुड बी लव फॉर ईच अदर, दैट इमोशन शुड ऑलवेज अराइज इन आवर हार्ट। जो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, दो आखर प्रेम के, जो पढ़े सो ही पंडित होए। मीन्स टोटल अगर आप लाइफ के अंदर प्रेम को जगा लेते हैं अपने अंदर, आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आप जरा जरा बात पर इरिटेटेड नहीं होते हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज की डेट में व्हेन वी सी amongst our students, their behavior is becoming very very irritating also and full of anger. There are reasons behind it, because there is a lot of exposure to the TV, media, and emotions are taking a back seat in life. Other reasons are there are expectations of the parents on the students, which creates stress on the students. So that is why there is a burst out sometimes. So all together we have to develop emotions among the students, that they have to behave properly with their elders, the values, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जो है उसका हमेशा अनुपालन होता रहना चाहिए। And second thing is, when you have develop empathy for the others, then only you will become a proper human being. आप देखिए कि एक दोस्त है आपका, वो आपके साथ जा रहा है और आपने देखा कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, आपने उसके चोट लगी, उसके साथ सिंपैथी की और उसके बाद आप उसको चले गए, अच्छा भी तुम आपने जाओ, कोई बात नहीं, चोट लगी। और एक दूसरा दोस्त है
जो उसके चोट लगी है तो उसको लेके अपने घर तक, उसके घर तक छोड़ के आता है, तो ही फील्स द पेन ऑफ दैट पर्सन. So that sort of emotional development is must to be developed among the students, so that there is a harmony in the society. And when there is a harmony in the society, there is a lot of love amongst the people. Then emotional, then total proper education will be there. That will be a 360 degree one. अब देखिए कि अगर आप इमोशनल हैं तभी आप एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं. बिल्कुल. अगर आप इमोशनल नहीं हैं, यू कैन नॉट बिकम ए गुड लीडर अनलेस अनटिल यू थिंक अबाउट द अदर्स. यू कैन नॉट बी ए गुड लीडर ऑल्सो. कहते हैं कि दुर्लभ नहीं है मनुज हित व्यक्तिगत सुख पाना, बट मुश्किल है कोटि कोटि लोगों को सुखी बनाना. जब आप कोटि कोटि लोगों को सुखी बनाते हो, that becomes only when you are emotionally developed. So it is a very, very important thing, emotional development, as far as educational field is concerned. That is my view. देखिए, आज के बच्चे जो हैं वो कल का भविष्य हैं. Yes. अगर उन बच्चों को ही हम नहीं सिखाएंगे कि इमोशंस क्या हैं, तो कल तो वो रोबोट की तरह बन जाएंगे फ्यूचर में. Yes, absolutely. और वो बन भी रहे हैं. हाँ. बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सारी चीज गूगल से अगर सीखेंगे तो इमोशंस कहाँ से आएंगी. इमोशंस डेवलप होना इज अटरली इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स. और जब तक ये नहीं डेवलप होंगी तो सोसाइटी के अंदर हार्मनी नहीं आ सकती. बिल्कुल सर, आई स्ट्रांगली एग्री विद दैट, बिकॉज आज भी अगर आप नॉर्मल लोगों को देखेंगे, उनके अंदर एम्पैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं है. मतलब रोबोट ही कह सकते हैं आप उनको एक तरीके से. आपको मैं बताऊं, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है. हाँ. लोग वीडियो बनाने हाँ में लग जाते हैं और उनको उन पर डालने में, मीडिया में डालने में लग जाते हैं. ये नहीं कोशिश करते कि एटलीस्ट दे शुड टेक दैट पर्सन टू द हॉस्पिटल, टेक केयर ऑफ हिम. देयर इज ए अटर एब्सेंस ऑफ इमोशंस एंड दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट्स, ताकि इन फ्यूचर सच टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इम्प्रूव्ड. वेल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर पर्सपेक्टिव. आई बिलीव काश सभी लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता तो आज स्टूडेंट्स अच्छे रास्ते में चल पाते. नहीं, we have to make all and each and every student a leader in this world. Yes, whichever student is with me, I always say that I will make him a leader, and for making him a leader, I will make him emotionally developed. That is my commitment to the educational field. Well, sir, that's a really powerful initiative. So my next question for you is, what initiatives are currently being implemented in your school to enhance the quality of education? Quality of, see, अगर हम समय के अनुसार चेंज नहीं होते तो हम आउटडेटेड हो जाते हैं. आपने देखा है कि नोकिया कैसे आउटडेटेड हो गया, क्योंकि समय के अनुसार उन्होंने चेंज नहीं किया. इसी प्रकार से मैं आप एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ कि एक बार एक कंपनी के अंदर एक अकाउंटेंट था और वो 25,000 की सैलरी में 20 साल पहले लगा था. और वो अकाउंटेंट वहीं वो काम करता रहा. करते करते 20 साल के बाद उसकी सैलरी 80,000 पे हो गई. और एक बार जब कंपनी इनोवेशंस कर रही थी, चेंजेस कर रही थी, तो कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस भी आए. तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट था, तो उन्होंने पूछा कि भाई किसकी सैलरी कितनी है. तो जब बताया गया कि उस फलाना बंदा है, तो उसकी सैलरी पर ध्यान गया कि इसकी सैलरी 80,000 रुपये. क्या काम करता है? सर ये अकाउंट्स संभालता है, मैनुअली संभालता है. तो उन्होंने कहा कि इस आदमी के बजाय दूसरा आदमी, नया आदमी ले हम जो कंप्यूटर्स बारे में एक्सपर्ट हो, तो कितने में आ जाएगा? उन्होंने कहा 25-30,000 में. कहते ठीक है, उसको बदल दो और नया आदमी ले लो. बट दिस स्टोरी टेल्स that with the changes we have to change in our life. So in schools also we have to bring new innovations, new infrastructure, digitalization we have to do. We have to use smart boards. We are using Atal lab also.
that old, method of learning by rod, that has to be, eschewed, that has to be abandoned, so that in future the students are well versed with the new way of latest technology and modern methodology. And the second important thing is, providing infrastructure will not work until and unless our teachers are trained in this aspect, in this scenario. So we are making our teachers also conducting workshops for them, so that they are ready for the new methods, new technology to adopt and make the students learn efficiently. So these are the methods we are using, so that the educational level is of the top level. That is why today our St. Teresa School is number one in Ghaziabad. Because we have introduced all those facilities in our schools, in St. Teresa Indirapuram also, St. Teresa School Sector 3 also, St. Teresa School Kaushambi also, St. Teresa School Vasundhara also. I am leading 23 schools altogether. So all these schools, whichever I am leading, I am making new innovations, new infrastructure, digitalization, training of the teachers. These are the methods we are using for enhancing and elevating our standards of education. Well, that's really inspiring to us. जो हमारा घर है वो हमारा पहला घर होता है, और जो हमारा स्कूल है वो हमारा दूसरा घर होता है. तो आई बिलीव दैट यू आर मेकिंग आवर सेकेंड होम अ बेटर प्लेस फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स. सो दैट वाज मिस्टर Rajaram Khanna with us. Thank you so much, sir, for joining us. And I believe a strong revolution is coming in the field of education by you. Thanks a lot, sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.